Hello everyone, welcome to Pekins. In the last lecture I was talking about brainstorming, and I would just give you a brief revision of whatever we covered in the brainstorming. Now when we were doing brainstorming, what is the meaning of brainstorming? The meaning of brainstorming is that you basically try to understand what the topic is talking about. वो topic आपको क्या बता रहा है. Now whatever we are doing right now is focusing on trying to have proper ideas and trying to have a proper direction of your ideas. एक तो होता है ना कि आप कहते हैं कि मेरे पास आइडियाज़ ही नहीं है ऐसे के, तो मैं उनको स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि no one is going to teach you how to develop ideas by just looking at stuff or just by looking at different formats. You have to be a voracious reader. अगर आप read ही नहीं करते, जो आप read करते हैं, whatever you read basically becomes the part of your writing style. So you have to be a voracious reader, but on purpose I have given you a very simple topic so that all of you could understand it in a good manner. Now let's have a look at the topic once again. Most people are learning online these days. What are the advantages and disadvantages? Most people are learning online these days, and what are the advantages and disadvantages? So what did we learn from the brainstorming? In the brainstorming part, we just talked about the different types of ideas we would be having. For instance, economical, convenient, time saving. It could be a conference booster. It could, but the disadvantages is that it could lead to communication barrier. It could lead to people not having it could lead people to not being that much attentive, and they might not be looking at things the way they would have looked at in the real classroom. Moreover, it would not be a classroom which would be that much disciplined, and internet accessibility would be a problem. Now in the last lecture I was talking about something called PES. If you watch my previous lectures, you would know what is the literal meaning of PES. PES basically stands for present, extend and support. Present, extend, support. अब मैं आपको एक आइडिया, इसमें से सिर्फ एक आइडिया, only one idea. All those people who are making the grave mistake of putting 4+ ideas or 5+ ideas in one paragraph, और वो भी जितने लोग जो ये समझ रहे हैं अभी तक कि कहीं से वहाँ कुछ मुझे लगता है कल बाय टुमारो मैं आपको वो फॉर्मेट जो है वो स्क्रीन शेयर करके आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन का फॉर्मेट दिखा दूंगा. बस उतना ही होना होता है. उसके बियॉन्ड अगर आप लोगों के एसेस रट्टा लगा के ये सोचेंगे कि इसमें से ये वर्ड चेंज कर देंगे, ये वर्ड चेंज कर देंगे, आपके एसे के ऊपर बहुत बुरा स्कोर आएगा. बिकॉज इट इज़ नॉट अ कन्वेंशनल पाकिस्तानी एग्जाम. दे वॉन्ट ओरिजिनलिटी, दे वॉन्ट यू टू फॉर्म ओरिजिनल आइडियाज, और एल्स यू वुड बी लूजिंग मार्क्स. And tomorrow we would also be having a fun vocabulary session जिसमें मैं तकरीबन 20+ 25 वर्ड्स रोज़ बोला करूँगा. एक वर्ड बोलूँगा और आप उसी वर्ड का सिनोनिम अपने कमेंट में लिखेंगे, और उससे आपकी वोकैबुलरी आप खुद नहीं भी लिख रहे, दूसरे जब कमेंट्स में लिख रहे होंगे, यू वुड एक्चुअली लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दैट ऑल्सो. सो दैट वुड बी आवर वोकैबुलरी एक्सरसाइज फॉर टुमारो. नाउ आई हैव एक्चुअली टेकन आउट अ वेरी सिंपल idea from here. What was the idea? The idea is time saving. Now instead of putting 3 to 4 advantages in one paragraph, I have only chosen one. And what is that one? That one idea is that it is going to be something which would enable you to save time. That is your central idea. For every paragraph, मैं फिर बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि मैंने वो बैंड डिस्क्रिप्टर्स पहले पाँच लेक्चर्स में समझाया है, उसको प्लीज़ आप फिर से देख लें. For every paragraph, you should have only one central idea.
only one central idea, only one central idea. अब जो लोग देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे मैं पागल हो गया. I'm saying all these things for the reason that ये कहने के बजाय भी, although I tell about this thing again and again, people end up putting these 4 advantages in one paragraph, and that is how they lose a lot of marks. The first idea is one, and that is the only idea you have to put in one paragraph. वो ये है कि आप you would be able to save time. Now उसी पैराग्राफ के अंदर जब आप अपने आइडियाज़ को डेवलप करते हैं, उसका मतलब होता है एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का मतलब है हम कैसे टाइम सेव कर सकते हैं. दैट इज समथिंग यू हैव टू पुट इनटू योर माइंड कि जो भी आप लिखते हैं उसका आपने एग्जामिनर को भी बताना है हाउ एंड व्हाई. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन से टाइम सेव हो रहा है, तो सिर्फ बताना जरूरी नहीं होता, कैसे बताना भी जरूरी होता है. इट इज इम्पेरेटिव फॉर यू to mention to the examiner how and why. That is called the development of your ideas, and that is how you achieve a better score. अब मैं यहाँ पे एक और झूठ भी नहीं बोलूँगा ये बता के कि हाँ कि आप सिर्फ ये कर लेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा तो आपका स्कोर आ जाएगा. अगर ऐसे ही स्कोर आना होता तो फिर वो लेक्सिकल रिसोर्सफुलनेस जिसमें स्पेलिंग वोकैबुलरी है उसका क्या होगा? ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, पंक्चुएशन, उसका क्या होगा? तो ये 25% है सिर्फ आपके स्कोर का. जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना पैराग्राफ का, वो कि आपको एक पैराग्राफ में क्या करना है, बाकी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं. एंड फॉर दैट वी वुड आल्सो बी हैविंग एक्स्ट्रा लेक्चर्स फ्रॉम टुमारो. ट्रैवल टाइम, आप कह रहे हैं टाइम सेविंग होता है, हाउ एंड वाई बताएं, कैसे कैसे टाइम सेविंग होता है. जब स्टूडेंट्स आते थे पैकेज में तो कोई आधा घंटा ट्रैवल करके आता था, कोई 10 मिनट्स करता था, कोई 1 घंटा, कुछ लोग 1.5 घंटा भी दूसरे शहरों से आते थे. नाउ यू वुड से दैट इट इज टाइम सेविंग बिकॉज अ पर्सन वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू ट्रैवल. Now you could talk about traffic congestion, you could talk about so many other things that if you're learning online you would be sitting in your home, or if you would be working in your workplace and you would be working from there, you won't be required to travel that much. Now this is how you have proven to the examiner कि online lecture से हमारा time save होता है. How and why, how आप जो भी लिखते हैं, whatever you write down, if you cannot tell how, that entire thing is of no importance. It is not significant at all. I'm just going to say this thing once again. जब मैं इस पैराग्राफ को, जब मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद अपना एक पैराग्राफ, ये ऐसे नहीं है, ये एक पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ जिसको मैंने डेवलप किया, और मैंने पिछले लेक्चर में मैंने वो एक पैराग्राफ आपको दिखाया भी था. तो मैंने एक आइडिया निकाला जो टाइम सेविंग था. मैंने बताया कि यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम बाय डूइंग ऑल दीज ऑनलाइन लेक्चर्स. अब ये मैं अपने से बना रहा हूँ, ऑनलाइन लेक्चर्स भी इतने अच्छे होते नहीं हैं क्योंकि मैं खुद 8 साल से करा रहा हूँ. असल क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं, मगर हमने फिर भी ये ऐसे टॉपिक की वजह से ही लिखना है. टाइम सेविंग, इट इज़ अ सेंट्रल आइडिया, कि हम टाइम सेव करते हैं. एक्सटेंशन में होता है कैसे टाइम सेव करते हैं. हम ये कहते हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना की ज़रूरत नहीं होती. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक कंजेस्शन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेड while moving from one place to another, and while you're doing all those things in the classroom, or when you're doing it in the online classroom, you would be saving a lot of time, because it's not going to be that much cumbersome. It would not be that much difficult to learn, since you would be learning from your own room. ये क्या है? ये है एक्सटेंशन. मैंने ये नहीं किया कि मैंने एक टाइम सेविंग लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कन्वीनियंट लिख दिया, यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्टर लिख दिया. आप में से जो लोग भी अपने पैराग्राफ के साथ ये करेंगे, आपका स्कोर बहुत नीचे जाएगा. ये नहीं है 4-5 पे चला जाएगा. अगर आपकी ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक है तो आपका 6 से ऊपर कभी नहीं जाने देंगे. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज कॉल्ड सपोर्ट. प्रेजेंट, extend, support. Present, extend, support. Present, extend, support.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट? अब हमें यह लगता है कि सपोर्ट का यही मतलब होता है कि हमने हमेशा बताना होता है अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू, हाँ ये भी बता सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो गिव योर ओन एग्जाम्पल्स. यू कुड से दैट since I started having online classes, I was able to save about 45 to 50 minutes of my time. So it can be very simple, or you could say according to a survey, when most universities started conducting online sessions, the students actually believed that they were saving approximately 1 to 1.5 hours every day, since they were not required to move from one place to another, or as they were not required to move from one place to another. So the basic structure of your essay has to be developed before you start writing down the essay. Am I being difficult? Let me say this thing once again. आपका brainstorming और आपके essay का basic structure आपके ऐसे लिखने से पहले डेवलप होना चाहिए. इसके एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं है, मगर ये आपको एक डायरेक्शन देगा. आप अपना ऐसे 15 मिनट में भी ख़त्म कर देंगे. इफ़ यू डोंट हैव दिस थिंग, एंड दिस इज समथिंग वी डू इन द क्लासरूम अ लॉट. क्लासरूम में मुझे लगता है सेकेंड वीक में पैकेज में जो कोर्सेज होते हैं वो 5 हफ्ते का है. अगर पहला वीक में हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री देता हूँ. उसमें भी ना मुझे याद आता है कभी कभी लोगों को ना ऐसे लग रहा होता है पता नहीं ये बंदा हमें धोखा दे रहा है, हमें क्यों ग्रामर रिव्यू करा रहा है. तो वो ग्रामर रिव्यू मैं हमेशा देता हूँ, हर किसी को भी देता हूँ. अगर कोई मुझे तंग ज़्यादा कर दे क्लास में, वो फ्री होता है, कोई ज़्यादा तंग कर दे मैं कहता हूँ ठीक है ना करें. तो इस चीज़ को भी आप समझें कि वो एक कॉम्प्लीमेंट्री इस वजह से दिया जाता है कि आपको मैं एक और ग्रामर क्लास में ना घुसा दूँ कि चलें जाएँ एक और ग्रामर की क्लास में. तो वो आपके पैसे भी बच जाते हैं. एक हफ्ते में हम ग्रामर जो आइट्स की ग्रामर होती है कवर कर लेते हैं. उसके बाद हम अपने रेगुलरली ही सब कुछ करते हैं. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू से द सेम थिंग अगेन. जब आपको व्हेन यू आर राइटिंग डाउन एन एसे, यू डोंट प्ले विद योर माइंड. इतना दिमाग जो है इतना प्रोसेसिंग नहीं कर सकेगा कि आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं तो दिमाग में ही सोचता रहूँगा, ये सोचती रहूँगी. आई वुड बी थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन माई माइंड एंड आई वुड बी राइटिंग देम डाउन. नो, नेवर नेवर नेवर, नो नेवर नेवर, नो. Why? Because in the real exam you would not be having time to think about all these things. आप क्या करेंगे? अभी आप प्रेजेंट एक्सटेंड सपोर्ट भी करें, आप एग्जाम में जाएंगे, पहले आपको बाहर बिठाए रहेंगे, फिर वो आपको लाइन में लगाएंगे, फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, लिसनिंग का एग्जाम होगा, रीडिंग का होगा, राइटिंग का होगा. राइटिंग में आप कहेंगे चलो ये ऐसे है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं. बिलीव मी कि सब कुछ करके भी ना स्टूडेंट्स जब अपना एग्जाम दे के आते हैं वो कहते हैं वो पता तो था मगर हमने तो 3 एडवांटेजेस ही लिखा है एग्जाम में. मैं को कहता हूँ ये तो हम पूरे कोर्स कहते हैं प्रेशर इतना था. फिर वो कहते हैं हाँ आपने जब हमसे रोज़ प्रेजेंट एक्सटेंड सपोर्ट करवाते थे पैराग्राफ का, तो उसके बाद जो वो करते थे ना वो कहते थे हाँ हमने कर लिया था, क्योंकि हमें आदत करी हुई थी कि हम पहले तो आइडिया लिखेंगे, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, पहले आइडिया लिखेंगे और उसके बाद सिर्फ कितना सिंपल है, हाउ सिंपल कैन इट बी. मैं आपको कह रहा हूँ एक आइडिया है, उसको बताएं वो कैसे टाइम सेविंग कैसे है, हाउ एंड देन टेल मी ओके प्रूव इट. ज़रूरी नहीं है कि आप अपना असल कोई एग्जाम्पल दें, यूनिवर्सिटी के दें, कोई नॉर्म अपने से बना लें, बट यू हैव टू डू इट. सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. व्हेन बिफोर द एसे you are going to talk about, you're going to write down the points which you're going to write down: present, extend and support. Okay, tomorrow we would be having a vocabulary session and I would be giving you a word. I'll just give you the time. I believe I'll be coming at 3 p.m. but if I change it I'll just inform you guys on the Facebook page. But at 3 p.m. we would be having a vocabulary session. For instance, मैं एक वर्ड बताऊंगा, imperative. Imperative का क्या मतलब होता है? Please write it down in the comment box. What is the meaning of imperative? आपको अगर नहीं आता तो ठीक है, मगर अगर नहीं भी आता तो कुछ तो लिखें कमेंट में, कुछ लिखें कमेंट बॉक्स में.
इम्पेरेटिव का क्या मतलब होता है? इम्पेरेटिव मीन्स इम्पॉर्टेंट. It was an imperative issue. It was an important issue. अब ये मैं साथ साथ कमेंट में ये लिखता भी जाऊंगा वर्ड को. ये एक ऐसी चीज़ है जो हम क्लास में रोज़ करते हैं. अगर आप इफ़ यू हैव बीन माई स्टूडेंट, आपको ये पता होगा कि मैं आपको एक सिमिलर वर्ड एक्सरसाइज देता हूँ. एक सिमिलर वर्ड एक्सरसाइज. यस, वेरी गुड मिस तूबा, गुड. तो ये हम कल करेंगे. जब जो सिमिलर वर्ड एक्सरसाइज है, जो मैं आपको कहता था, ये आपके पास 10 मिनट्स हैं. इस पेज को जितने भी वर्ड्स हैं इन सारों को लिखें, और आप लोग सब लिखना स्टार्ट कर देते थे. वो आपके दिमाग को रिस्पॉन्सिव बनाता था. तो कल हम उसकी भी करेंगे. नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू वॉच द फर्स्ट लेक्चर, द वन विच आई मेड, एंड ऑल्सो वॉच दीज वंस. इससे आपको ये होगा कि एक आपका जो पूरा ऐसे स्ट्रक्चर है वो ज़रा बेहतर हो जाएगा. एंड ऑल्सो आई वुड बी वर्किंग ऑन द इंट्रोडक्शन टुमारो, and then I would be showing you the different types of essays. We would be reading some sample essays. Okay, thank you.